नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी परियोजना का पैसा बैंक में जमा हो गया है, लेकिन दो निवासी मुश्किल में हैं क्योंकि उन्हें अभी तक यह नहीं मिला है। घटना मुर्शिदाबाद के फरक्का में हुई। मुर्शिदाबाद के फरक्का निमातला की रहने वाली दो, रेखा बेवा और रासेदा बीबी, कथित तौर पर फरक्का पिछले 2 वर्षों से सरकारी बैंकों में निवेश करके घर के पैसे, बेरोजगारी भत्ता, लक्ष्मी भंडार और अन्य सरकारी परियोजनाओं सहित सरकारी परियोजनाओं से पैसा नहीं निकाल पा रही हैं। इस बारे में सरकारी बैंक के प्रबंधक से बात करते हुए प्रबंधक ने कहा कि उनके खाते में कर्ज ले लिया गया है। हालांकि बुढ़िया ने शिकायत की कि मैंने किसी कर्ज के लिए आवेदन नहीं किया, तो मेरे खाते में ऋण कैसे जोड़ा जाता है। इसके चलते वृद्धा को काफी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर रासेदा बेबी का आरोप है कि इस बैंक में उनके लक्षित धन की हेराफेरी की गई है, लेकिन जब पैसा कम हो गया तो बैंक मैनेजर ने उसे वही बताया कि उसने बैंक से कर्ज लिया है। ये दोनों महिलाएं अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में भीख मांगती हैं। सरकारी प्रोजेक्ट से पैसा मिल भी जाए तो उसे समझ नहीं आता कि वह पैसा जुटाए बिना क्या करेगा। स्थानीय निवासी मकसाद शेख ने बताया कि पिछले 5-6 साल में फरक्का ने सरकारी बैंक के तत्कालीन मैनेजर और 2-3 स्थानीय कैशियर की मदद से करीब 400 से 500 ग्राहकों के फर्जी कागजात बनवाए और हासिल किया। कृष्ण क्रेडिट कार्ड ऋण, और कहा जाता है कि उसने उस पैसे का गबन किया था। 1 साल बाद एक पत्र आम लोगों के दरवाजे तक गया और बैंक के ग्राहकों को पता चला कि उनके नाम पर कर्ज है। इसलिए इस सरकारी बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम स्थानीय लोग चाहते हैं कि आम लोग जो बिना कर्ज के भी परेशानी में हैं, वे अपना निजी पैसा रखें और आम गरीबों को सरकारी पैसा दें। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हालांकि सरकारी बैंक के प्रबंधक ने कहा कि बैंक के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। টাকা তুলতে এসি তো ব্যাঙে দেয় না কি লোন লেবা আছে, আমি লোন লাইনি, কিছু জানি না। চুরি করা ওরা কি করেছে না করেছে আমি চেহে টেহে খাই। আর আমার নামের লোন নিয়েছে। আর ঘোড়া বেগার ভাত্তা 100 দিনের কাজ করেছি, ওগুলা টাকা সব কাইটা নিয়েছে। এই তো 1-2 বছর থেকে কয়েছে কি না দিব না, লোন নিয়েছো তুমি, হুড়কি না আমি জানি না, আমি লাইনি, না জমি টমি কিচ্ছু না, আমি চাইয়া খাই। ছেলা ফিলা ও নাই, কেহু নাই, পুরুষও নাই, রাঁড়ি আছি, একলাই থাকছি। এই তো পাঞ্জাব ব্যাঙে তো এখন অত টাকা চাহাছি। দুবার ঘুরে গেলাম, কেন গেলছি দেয় না। আরও কয়েছে কি পুলিশ ডাকবো তোমাকে, না এবার ভাত্তা আছে 2 বছর থেকে উঠে পাই না। ঘটনাটা প্রায় মোটামুটি 5-6 বছর আগে এই এলাকার প্রায় 400 থেকে 500 বেনিফিশিয়ারি হবে, কাস্টমার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, যাদেরকে ভুয়ো ডকুমেন্টস তুলে এই পলাশী গ্রামের 2-3 জন মূল পান্ডা যারা আছে তারা লোককে ভুল বুঝিয়ে ডকুমেন্টসগুলো কালেক্ট করে এই পাঞ্জাব ব্যাংকের তৎকালীন ম্যানেজার এবং ক্যাশিয়ার, এই দুজনের মানে সমন্বয়ে এরা অনেক টাকার ফর্জারি করেছিল প্রায় 4-5 বছর আগে। তার বেশি 5 বছর আগে বেশি হবে, তো 5 বছরের বেশি হবে এটা। তারপরে এরা জানতে পারে, যখন ব্যাংক জানায় যে তোমাদের নামে লোন এসছে, হঠাৎ করে ব্যাংক এদেরকে নোটিশ পাঠায় যে তোমাদের নামে লোন চলে এসছে। তো এরা ব্যাংকে যখন আসে তখন ব্যাংকের ম্যানেজার এদেরকে বলে যে তোমাদের নামে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড লোন হয়েছে, কেসিসি লোন যেটাকে বলে। তো এবার আমি যখন ব্যাংকে এসেছিলাম, আমি দুজনের ডকুমেন্টস দেখতে এসেছিলাম। ব্যাংকের ম্যানেজার আমাকে ডকুমেন্টস দেখিয়েছিল, সেই দুটো ডকুমেন্টসই কিন্তু ভুয়ো ডকুমেন্টস। এটা প্রায় বছরখানেক আগে। তারপরে আমি একটা আরটিআই ফাইল করেছিলাম, যতগুলো বেনিফিশিয়ারি, যতগুলো অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ছিল তাদের সমস্ত তথ্য আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কোন ডকুমেন্টসের আধারে এদেরকে লোন দেওয়া হয়েছিল। সেই আরটিআই আমার রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল, বলেছিল যে আমাকে পার্সোনালি এতগুলো লোকের আরটিআইয়ের মানে তথ্য আমাকে দেওয়া যাবে না। তারপরে এদের যে মেন ব্রাঞ্চ আছে, মেন ব্রাঞ্চ থেকে একজন ইনকোয়ারি অফিসার এসেছিল, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এসেছিলেন, এখানে এসেছিলেন, তিনি ইনকোয়ারি করে গেছেন। আমি কয়েকজনের নামও দিয়েছিলাম। তারপরে আমরা একটা দাবি করেছিলাম যে যতক্ষণ ইনকোয়ারি রিপোর্ট ফাইনালি যখন কিছু না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাস্টমারগুলোকে হ্যারাস করা যাবে না। ফাইনাল রিপোর্ট আসবে তবে যা একটা ফয়সলা হওয়ার হবে, কারণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানে যে এখানে একটা ফর্জারি হয়েছিল।
যদিও এই ম্যানেজার জড়িত ছিলেন না, তার আগের ম্যানেজার ছিলেন, কিন্তু ব্যাংকই এটা ঘোটালা করেছে। এখন এই ব্যাংকের ঘোটালাটাকে সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। है। अब ये तो मतलब आपको देखना पड़ेगा, उन्होंने हमारे दिया है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे। यदि हमारे पास तो सारा डॉक्यूमेंट है, लोन का डॉक्यूमेंट पे उनका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो भी है, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर जो है वो सारा तो हमारे पास है। तो उन्होंने आज अपना डिमांड किया है कि अगर जो भी लोन डॉक्यूमेंट है उनका जेरोक्स के लिए उनको हार्ड कॉपी प्रूफ के दिया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने ऊपर के अथॉरिटी से बात की है, वो परमिशन हमें दे देंगे। वो परमिशन देने के बाद हम लोगों ने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के बाद जो है उन्हें परमिशन के साथ जो है जो भी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स है उनको प्रोवाइड किया जाए। केसीसी के मैटर में जो है ना, आपका ओरल लीजिंग भी एक होता है प्रोसीड्यूर, जिसमें कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किसी दूसरे के ज़मीन पर भी खेती करने के लिए पैसा ले सकते हैं, को लोन दिया जा सकता है। देखिए ये तो अब उनका पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। ये तो मतलब देखिए डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस तो हम लोग बताना बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि कौन सा डॉक्यूमेंट जेन्युइन, ये तो फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो जाता है। ये तो देखना पड़ेगा ना उनका अकाउंट किस रीजन किस टाइम में खुला हुआ है। तो वही तो मैंने इसीलिए तो 2 दिन का टाइम मैंने लिया है, जो कब अकाउंट क्या हुआ है क्या नहीं, उसके हिसाब से अपने सुपीरियर से बात करके मैं जो भी उनका जेरोक्स उन्होंने डिमांड किया है वो जेरोक्स में उन्हें दूँगा। ठीक है, ऑन डॉक्यूमेंट्स तो सारा कुछ सही है, ठीक है। अब ये चीज़ हो सकता है कि मतलब कुछ उनसे गलती हुई हो, हाँ मैनेजर से या फिर कस्टमर से, क्योंकि देखिए बैंक ने अपना प्रोसीड्यूर तो पूरा फॉलो किया है, ठीक है, क्योंकि बिना प्रोसीड्यूर फॉलो किए तो लोन देना बड़ी मुश्किल की बात है। बैंक के से प्रोसीड्यूरल लैप्सेस तो नहीं है, अरेस्ट या जो भी उनका मैटर है वो बात तो अलग चीज़ है। वो इंक्वायरी बैंक का अपना इंटरनल इंक्वायरी है वो हो चुकी है, जो भी उन्हें मतलब वर्डिक्ट था वो उन्हें बता दिया गया है।